टू स्टार्ट विथ आपण लास्ट टाइम भेटलो होतो तेव्हा आपण म्हटलं होतं की एनीवन हु वर्क्स इन अ टेक इंडस्ट्री त्याच्यासाठी काही ड्रीम कंपनी सारख्या असतात आणि वी सेड दोज आर द फॅंग कंपनीज एनीवन रिमेंबर्स द फुल फॉर्म ऑफ फॅंग हु कॅन कॉन्ट्रीब्यूट. आपले सोशल मीडिया फेसबुक, इन्स्टा, व्हॉट्सॲप असं. नाही, अजून Facebook is a part of Fang, but it's not the whole Fang. Fang is Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and ओके Google. ओके ओके हां हां सॉरी. So those are the five companies that are called FANG, and they are considered to be dream companies for anyone who works in technology to aspire to join these companies. सो मला जस्ट विचारायचं आहे ह्याच्यात की ह्याच्यातल्या मी दोन कंपनीज आता पॉइंट आउट करणार आहे. वन इज Amazon and one is Netflix. Huh? So let's take one at a time. Let's take Netflix. What do you think makes Netflix so special that it is included in FANG? Like Microsoft is not there, but Netflix is there in FANG. What makes it so special? Any ideas? Any random guesses? Welcome. Come on, random guesses. It need not be right because even I don't I know. guess FANG companies uses machine learning extensively. Like Google हर एक चीज में machine learning डाल ही देता है, कैमरा हो, messages हो, किसी में. Microsoft is more of operating system based company like this and Azure. So that is not the reason, right? Like you're saying, just because they use machine learning, to but I got sorry, Shravan. फैंग कंपनीज के रीच ज़्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपेयर टू अभी फेसबुक हो या अमेजोन हो या एप्पल हो या नेटफ्लिक्स हो या गूगल. इनका रीच भी ज़्यादा है और इनको यूज़ करने वाले पब्लिक भी ज़्यादा है. कंपेरेटिवली माइक्रोसॉफ्ट इज आल्सो वी कैन कंसीडर इज वन ऑफ अ ट्रेंडिंग कंपनी, बट कहीं ना कहीं ये फैंग कंपनीज के यूज़ डे टू डे लाइफ में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट. Shreyas Chaudhary ने chat में लिखा है, they can show viewer what they like. This is the exact thing that I was expecting. कि what makes Netflix so special is whatever they recommend you. ओके आपने एक टाइप के मूवीज या सीरीज देखे हैं तो इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या देखना है, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू दैट यू विल लाइक एंड हाउ एंड व्हाई दे डू इट इज द स्पेशलिटी ऑफ नेटफ्लिक्स एंड एज वेल एज Amazon. बट ऐसे सेड एक लेते हैं तो फिर विल गो. सो Amazon ऑल्सो हैज, देखो इफ यू कंपेयर नेटफ्लिक्स टू एनी अदर OTT कंपनीज लाइक Amazon प्राइम हो गया, डिज्नी हॉटस्टार, आई एम टॉकिंग अ लिटिल इंडियन कंटेक्स्ट, बट the size of variety of content या फिर just the size of content, मतलब number of different shows and movies available with Netflix is also large. Same goes with Amazon. Amazon को शायद बीट करने वाला शायद Alibaba हो सकता है, but if you compare Amazon to Flipkart, Flipkart का product base बहुत कम है if you compare to Amazon. Same goes for Netflix. Netflix के पास बहुत ज़्यादा shows हैं compared to other OTT platforms, but that is not what what differentiates them. What differentiates them is the personalization. Yes, Rajesh, Rajesh, yes, the person, yes, ये पॉइंट पे मैं आने वाला था कि राजेश ने ये लिखा है कि सपोज आप सपोज नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन हो एंड यू वॉच अ लॉट ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी मूवीज, एज गुड एज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल सारे मूवीज आपने देख लिए हैं जिसमें वो लीड रोल में है. नाउ देयर आर सम मूवीज जहाँ पे वो लीड रोल में नहीं है, ही प्लेज अ कैमियो. तो अगली बार उस मूवी का अगर आपको रिकमेंडेशन आया या फिर यू मे लाइक दिस में उस मूवी आई, तो उधर rather than showing a poster of the main characters, you will see a photo of Nawazuddin Siddiqui there. And if you really are a user of Netflix, I know Netflix is expensive in India, but if you have, observe that they do that level of personalization for you, and that is what their USP is. अब यहाँ तक नेटफ्लिक्स कैसा पहुंचा is one of the things that we'll discuss today. But after this question, I would like to know आप में से कितने लोगों को recommendation system या recommendation engine ये word पहले सुना है, and what does this mean to you? I'm waiting for someone to talk. नहीं सुना is also a valid answer, but someone should. I want to make this interactive, guys. It's not like
मैं अकेला 1 घंटा बात करूंगा। हैबिट्स को डिटेक्ट करके पर्सनलाइज कुछ भी इन्फो या फिर डिस्प्ले दिखाना वो लोग यूजर्स को। ओके, काइंड ऑफ हम लोग गूगल को कंसीडर कर सकते हैं कि वो अपना डेटा लाइक अपने डे टू डे सर्चेस से वो अपना डेटा अपन कौन है अपन अपना एज क्या होगा पर्टिकुलर अपना इनकम स्टेटस क्या वो सब डिटेक्ट कर लेता है। तो उस हिसाब से वो अपन को एक प्रॉपर रिकमेंडेशन देता है अपना प्रेफरेंसेस के ऊपर। ओके, Prediction of what you may like or what you may not dislike. Yeah. यस और व्हेन वी कम टू गूगल, राइट, गूगल के कई प्रोडक्ट्स में रिकमेंडेशन इंजन यूज होता है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, बट गूगल itself is not recommendation system, it's a information retrieval system. इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का केस स्टडी कभी और लेंगे, आज मैंने चुना है विल टॉक अबाउट रिकमेंडेशन सिस्टम्स, बट यस, सो देयर आर लॉट ऑफ गूगल प्रोडक्ट्स दैट यूज रिकमेंडेशन इंजन। तो नेटफ्लिक्स हो गया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, अमेजॉन हो गया ई कॉमर्स के लिए, यूट्यूब हो गया। वैसे कुछ और एग्जांपल्स आपके पास है जहाँ पे पीपल यूज रिकमेंडेशन सिस्टम्स या इंजन? एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ योर माइंड? Chrome, Google, the Google app. ओके, वो क्या रिकमेंडेशन करेगा? Articles, the articles which I prefer are shown Right, yes. in Instagram feed, every social media feed. Exactly, yes, social media. They just like reels, yes, reels. Quora, okay, yes, Quora definitely, but Quora कुछ ओवरडू कर देता है मेरे हिसाब से। My personal experience with Quora is they overdo a lot of things while recommending. But yes, they definitely do it. Okay, other things may be something like Gaana.com, Spotify, या फिर advertisement is a different ball game. Advertisement में किसका advertise promote करना है, किससे ज़्यादा revenue आ सकता है, उसी सब that plays a major role rather than recommending some ad to someone. Yeah, like in social media they tend to give ads that are related to you, that you watch content related. Yes. तो सोशल मीडिया तो हमने ले ही लिया है, लाइक सोशल मीडिया डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन करते हैं, दे ट्वीक विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे वांट टू रिकमेंड यू, दे प्ले विद यू लिटरली विद देयर रिकमेंडेशंस. अनदर थिंग वुड बी समथिंग लाइक अ न्यूज़ और अ मीडिया. सपोज आप किसी मैगजीन के वेब पेज पे जाओ, जैसे आउटलुक इंडिया या फिर Washington Post, New York Times, anywhere, and then what kind of news you like to read. Someone who likes to read Bollywood, Hollywood gossips, उसको उसी टाइप के recommendation आएंगे. Someone who likes right wing news, उनको सिर्फ right wing आएंगे. Someone who likes left wing, उनको left wing posts ज़्यादा recommendation में आएंगे. And this happens. And another thing that might interest is dating apps. Dating apps use recommendation based on your previous usage. So these are some examples of recommendation engines. तो अगर हमको कोई recommendation engine build करना है, हाँ, तो हम लोग क्या क्या consider करेंगे? Any wild guesses? User का locality, culture, Okay. mindset which he possess. Globally, Globally लोकेशन तो जीपीएस से पता चल सकता है, लेकिन अभी माइंडसेट और कल्चर तो नहीं पता चल सकता ना. लाइक मेजरेबल थिंग्स तो रिकमेंडेशन सिस्टम में इनपुट जाएंगे. लाइक कोई भी मशीन लर्निंग है उसको इनपुट मिल सकता है, ऐसी चीजें, बिकॉज इट विल हैव सम इनपुट डेटा जिसके बेस पे वो रेकमेंड करेगा. सो अपने सर्चेस के बेस पे वो लाइक डेटा एनालाइज कर लेगा कि वो पर्टिकुलर किस रेंज पे आ रहा है, कि लाइक ये क्या है, इसके एज कैटेगरी में आता है, वो अपने सर्चेस के बेस पे उस हिसाब से उसको डेटा दे सकता है. एज, पास्ट हिस्ट्री, पास्ट सर्चेस, यस. एनीथिंग एल्स? कम ऑन गाइस, अगर हम आज हमें मशीन लर्निंग ना भी आता हो, लेकिन एज अ यूजर जिसको हम वी आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग थिंग्स रिकमेंडेड थ्रू वेरियस प्लेसेस, हम कुछ तो आइडिया लगा सकते हैं ना कि हमें किस बेसिस पे देते होंगे ये सब चीजें.
other app user uses. Shreyas says other app user uses. Yes, if we track cookies, we'll get it, but हमेशा सब चीज का access नहीं होता. But yes, asking interest. Response, Yes, Roshan. the recommended response, like generated response का user कैसे respond करते हैं, can be used to predict future recommendations. यस यस. तो है ना, अभी थोड़ा पॉइंट पे आते हैं कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स दो टाइप के होते हैं. एक होता है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, एक होता है कंटेंट बेस्ड. तो आई स्टार्ट विद कंटेंट बेस्ड. तो अभी हम लोग जो सब चीज डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें से पास्ट बिहेवियर या पास्ट सर्चेस या पास्ट परचेसेस या पास्ट वॉच्ड व्हेन इट कम्स टू ओटीटी, ये सब हम देखेंगे व्हेन वी डू कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. लेकिन जब हम कंटेंट बेस्ड चीजें करते हैं, तो कंटेंट बेस्ड भी दो तीन चीजें क्या होते हैं. एक है प्रोडक्ट बेस्ड, एक है पर्सनालिटी बेस्ड, एक है नॉलेज बेस्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ऑन स्पॉटिफाई या गाना.com या कहीं पे भी हो, एंड यू स्टार्ट द ऐप, यू प्ले अ सॉन्ग. सपोज अभी होली हुई तो some होली सॉन्ग. तो नेक्स्ट सॉन्ग दैट ऑटोमेटिकली प्लेज विल बी समथिंग रिलेटेड टू होली ओनली. So there are machine learning models which detect audio, which detect words, and similar words के साथ होता है. Suppose ऐसा हो सकता है कि you start with a song of अरिजीत सिंह and फिर सिर्फ अरिजीत सिंह के songs next play होते रहते हैं. तो वो किसी एक आर्टिस्ट को पकड़ लेता है, और या फिर एक it will have a group of artists, suppose singer, composer, other artists, musicians, या फिर जो म्यूजिक वीडियो में जो आर्टिस्ट हैं, किसी एक का जिसका प्रेफरेंस ज्यादा है based on past history, उसी हिसाब से आपका नेक्स्ट प्लेलिस्ट वो चालू कर देता है. तो दिस इज कंटेंट बेस्ड. इसमें जो प्रोडक्ट है, ये जो गाना है, गाने के कुछ फीचर्स हैं, राइट. द आर्टिस्ट ऑफ द सॉन्ग या द जॉनर ऑफ द सॉन्ग, ये एक दीज आर द फीचर्स ऑफ द सॉन्ग. तो इस फीचर्स पे बेस्ड जब रिकमेंडेशन होता है, तो इसे हम कहते हैं कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन इंजन. या फिर आप अगर फ्लिपकार्ट पे गए एंड यू वांट टू बाय अ लैपटॉप. So when you want to buy a laptop has a configuration such as RAM, hard disk, processor. So based on these multiple features of the product, it will also recommend you other laptops in the same configuration, in the same price range, or of the same brand. तो कुछ उस प्रोडक्ट के बेस्ड इंफॉर्मेशन पे वो ये करता है. फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू मिंत्रा. तो मिंत्रा पे मैं रजिस्टर करता हूँ, तो मेरा एज, जेंडर, लोकेशन, ये सब रिकॉर्ड हो जाता है. वंस दे नो, एंड दे ट्राई टू गेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, लॉग इन विद फेसबुक. तो फेसबुक पे मैंने डाला है वर्क एज दिस इन दिस कंपनी, तो मेरा प्रोफेशन पता चल गया. या फिर मैं कौन से डिवाइस यूज करता हूँ. डू आई यूज अ लिनक्स लैपटॉप, डू आई यूज एन एप्पल फोन, डू आई यूज व्हाट टू एक्सेस. उसके हिसाब से भी कुछ प्रेडिक्शंस हो सकते हैं. तो इस हिसाब से, फॉर एग्जांपल लोकेशन, में हमेशा डोंबिवली, ठाणे, इस रीजन से लॉग इन करता हूँ. तो इस रीजन के लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मेरी पर्सनालिटी बेस्ड मुझे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आ रहे हैं. मैंने पास्ट में किस साइज के कपड़े खरीदे हैं, किस टाइप के कपड़े खरीदे हैं. तो मिंत्रा यूजेस दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू बेसिकली गिव मी रिकमेंडेशन. तो यहाँ पे पहला एग्जांपल लिया जब हम किसी गाने का लिया, व्हेन इट हैड आर्टिस्ट, फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह, एंड उस आर्टिस्ट से पकड़ के, या फिर किसी एक एल्बम से गाना उठाया. फॉर एग्जांपल, यू स्टार्ट प्लेइंग अ सैराट सॉन्ग, अगला सॉन्ग भी सैराट मूवी का ही लगेगा. तो दीज आर कंटेंट बेस्ड थिंग्स, आइदर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन या फिर यूजर का इंफॉर्मेशन, मेरा इंफॉर्मेशन, व्हेन आई लॉग ऑन टू मिंत्रा. अब नेक्स्ट अदर टाइप ऑफ रिकमेंडेशन इंजन क्या होता है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. इसमें क्या होता है, हम यूजर या प्रोडक्ट के फीचर से कुछ नहीं लेना देना. लाइक मैं अगर लॉगिन करता हूँ, तो पुष्कर का एज, जेंडर, प्रोफेशन कुछ भी हो, मेरे को लेना देना नहीं है. और एक मैं या फिर मैं कहीं नेटफ्लिक्स पे जाके शायद फ्रेंड्स देखता हूँ. तो फ्रेंड्स का जॉनर कॉमेडी है, उसमें कौन कौन आर्टिस्ट हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. लेकिन पुष्कर का सारा हिस्ट्री है, और उस शोज का सारा हिस्ट्री है. सिर्फ इन दो चीजों पे हम रेकमेंड करते हैं. अब ये कैसे करते हैं, तो वी क्रिएट अ मैट्रिक्स. मैं एक एग्जांपल के लिए मैं एक चीज दिखाता हूँ. आई प्रेजेंट माय स्क्रीन, फिर मैं आपको थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊंगा. लेट मी नो व्हेन यू कैन सी माय स्क्रीन.
मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes. Yes. Okay. Hold on a second. ओके अब ये लेफ्ट साइड पे है ना, ये यूजर्स हैं, और राइट साइड पे मूवीज है, एनिमेटेड मूवीज है, ठीक है। और हर एक को 5 स्टार में से कुछ स्टार हर मूवी के लिए देने बोला है हमने, ठीक है। तो अब ये जो पहले 2 यूजर्स है ना, जो और बेक, इन्होंने ऑलमोस्ट हाई रेटिंग दिया अप को, वॉली को, ठीक है। इन दोनों का एवरेज है 2.3, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, whereas these are extremely opposite from LG। अब ये एक बहुत छोटा एग्जांपल है, हम आंखों से देख के भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेक और एलजी तो एक्सट्रीम अलग है, 5-2, 5-2, 2-5, 2-4। तो फर्स्ट 4 एग्जांपल से तो दे आर वेरी 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 डिफरेंट। लेकिन जब ये बेस बड़ा हो जाता है हमारे यूजर्स का और हमारे मूवीज का, तो वी हैव टू फाइंड सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज 2 रोज। ये एक मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, और जिसको रेटिंग नहीं दिया हुआ अभी तक वहां पे 0 रख देते हैं, और फिर उस 0 को हम प्रेडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल जो का वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर अप मूवी का वेक्टर है ये वर्टिकल लाइन। और हम देयर आर वेरियस सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। द मोस्ट पॉपुलर वन इज कोसाइन सिमिलैरिटी, जिसमें क्या होता है, अगर जो और बेक कितने सिमिलर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग। हमें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हमने स्कूल में सीखा है। तो इस हॉरिजॉन्टल वेक्टर का और इस हॉरिजॉन्टल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जो का वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बेक का वेक्टर, इसको कहते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी। तो ऐसे अलग अलग सिमिलैरिटी मैट्रिक्स होते हैं, और जो हाईली सिमिलर यूजर्स हम ढूंढते हैं, और फिर बेक ने किसी मूवी को हाई रेटिंग दी और वो जो ने देखा नहीं है, तो जो को हम उस मूवी का रिकमेंडेशन देंगे। तो इस तरीके के किसी भी एल्गोरिथम को हम कहेंगे कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। आई होप आई एम क्लियर। अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछना, मैंने शेयरिंग बंद कर दिया है, लेकिन do you get the idea how collaborative filtering is done? Yes, no? Yes. Yes, thanks. तो ये तो काफी बेसिक एग्जांपल है, लेकिन नेटफ्लिक्स प्राइमरीली यूजेस कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। नेटफ्लिक्स डज नॉट यूज कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, और इससे काफी एडवांस मॉडल होता है। इतना सिंपल कोसाइन सिमिलैरिटी या इतना सिंपल मैट्रिक्स से नहीं होता। But since we are beginning things to learn, this is the purpose of these sessions is to motivate us to start looking into machine learning and go there. So I'm trying to keep it as basic as possible. अब अगर मैं recommendation engines की बात करता हूँ और मैं Netflix प्राइस के बारे में ना बात करूँ तो मुश्किल हो जाएगी, मतलब it will be not fair। तो Netflix प्राइस करके एक चीज थी, it ran for 4 years, 2006 to 2009. तब Netflix was not an OTT platform, it was a DVD rental system. Like आप online जाते हो, you go to Netflix and you rent a DVD for a movie or a show, और वो आपको घर पे डिलीवर होती है, पहले रेंट की हुई चीज का DVD वापस ले लेती है। That was their business model in 2006. तो उन्होंने तब एक रिकमेंडेशन इंजन बनाया था, और उन्होंने 2006 में एक कॉम्पिटिशन लॉन्च किया कि जो भी हमारे इस रिकमेंडेशन इंजन की एक्यूरेसी को 10% से बीट कर दे, उनको हम $1 million देंगे। $1 million in 2021 is also a lot. So imagine 2006 में $1 million का प्राइस उन्होंने अनाउंस किया था। And if you beat us by 1%, तो या फिर whoever beats us below 10% but is the maximum that year gets $50,000. And if you beat us by more than 10%, we'll give you $1 million. तो 2006 में पहली बार किसी एक ग्रुप ऑफ एक टीम ने 1% बेटर बनाया, उनको 50,000 मिले। 2007 में ग्रुप बीट नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम बाय 7 to 8% ऑफ एक्यूरेसी, उनको भी 50,000 मिले। 2008 में क्या हुआ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद मुझे और नेट पे ढूंढना पड़ेगा, आज के सेशन के लिए मैं उतना रिसर्च नहीं कर पाया, बट 2008 में कुछ हुआ। 2009 में finally they were beaten by more than 10% and the teams were given $1 million. फिर 2010 के पहले क्या हुआ ना,
नेटफ्लिक्स ने किसी भी यूजर का एक्चुअल नाम, एड्रेस, ईमेल कभी रिलीज नहीं किया था, केप्ट इट अनोनिमस। एक रैंडमाइज्ड ये दे दिया था यूजर आईडी, तो ताकि कोई उनको ट्रेस बैक ना कर सके, बिकॉज इट वाज अंडर प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट इन यूएस। फिर क्या हुआ, किसी ने इन यूजर्स का जो भी रेटिंग था उसको IMDb और अदर रेटिंग वेबसाइट्स के साथ मैच करके उन यूजर्स का एक्चुअल आईडी फिगर आउट कर लिए, एंड मैक्सिमम यूजर्स के वो लोग ट्रेस बैक कर पाए। तो इट ऑटोमेटिकली टर्न्ड इनटू वायलेशन ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट एंड दे हैड टू स्टॉप कंपटीशन इन 2010। So there is no longer a Netflix price competition, but 4 साल तक ये competition चला, and more than 20,000 teams from 150 countries participated in this competition. It was that huge a competition, which, I mean, whoever works in machine learning and has a little exposure to recommendation system knows about what Netflix does. And Netflix is also special for one more thing. This is off data science या machine learning topic. नेटफ्लिक्स में आप CEO से लेके छोटे से छोटे पोजीशन में हर एक बंदे का सैलरी हर एक को पता होता है, या फिर दे कैन फिगर आउट। दैट इज एन ओपन सैलरी कल्चर व्हिच इज वेरी फैसिनेटिंग। इंडिया में भी एक दो कंपनीज में ऐसे करते हैं, व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो, जस्ट एन FYI फैक्ट बिकॉज यू आर नॉट टॉपिक ऑफ नेटफ्लिक्स। ओके, तो अभी एक और टाइप का मॉडल मैं लूंगा रिकमेंडेशन इंजन में, और विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लाइक बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम एंड वी हैव टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स एज वेल। सो एक 2-3 साल पहले गूगल ने एक रिकमेंडेशन सिस्टम का पेपर पब्लिश किया था, विच वॉज कॉल्ड वाइड एंड डीप मॉडल्स। ठीक है, अब उन्होंने ये एक्सप्लेन करते हैं कैसे कहा कि सपोज आई एम डूइंग समथिंग फॉर अ स्विगी और अ जोमेटो, वेर यू नो द कस्टमर टेल्स मी समथिंग ही क्रेव्स फॉर ईटिंग, और मैं उससे रिलेटेड कोई फूड प्रोडक्ट उनको सीधा डिलीवर कर देती हूँ। तो उन्होंने बोला समवन सेज फ्राइड चिकन लाइक द KFC का बकेट में जो चिकन आता है, द फ्राइड चिकन। तो समवन सेज फ्राइड चिकन, तो यूजुअली हमारे जो रिकमेंडेशन इंजन होते हैं वो क्या करते हैं, इन दो वर्ड्स का मोस्ट सिमिलर कौन सा और प्रोडक्ट है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब उस एरिया में सपोज KFC नहीं है या फिर कोई फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट नहीं है, तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग उनके मॉडल से आता है चिकन फ्राइड राइस, जिसमें राइस को फ्राई करते हैं, चिकन को सिर्फ कुक करते हैं। चिकन इज नॉट फ्राइड, तो यूजर इज डिसअपॉइंटेड, आई वांटेड टू ईट अ फ्राइड चिकन बट मुझे मिला है चिकन फ्राइड राइस। तो सम थिंग्स वेर नीडेड टू बी मेमोराइज्ड। उनको चिकन बर्गर चलेगा क्योंकि चिकन बर्गर का पैटी इज अ फ्राइड चिकन। उनको चिकन वॉफल चलेगा क्योंकि उसमें देयर इज फ्राइड चिकन, बट दे वोंट प्रेफर चिकन फ्राइड राइस। तो ये जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो मैक्सिमम टाइम ये अनमेमोराइज्ड फ्राइड चिकन के लिए चिकन फ्राइड राइस देते थे। तो उसको एक मेमोराइज्ड मॉडल देने के लिए उन्होंने वाइड एंड डीप मॉडल्स बनाए। तो ये वाइड मॉडल इज अ लीनियर मॉडल जो चीजें मेमोराइज करता है, and slowly that model learns कि user का preference क्या है and things like that, and किसको कितना वेटेशन है, कब deep model से recommendation लेना है, कब linear model से या फिर wide model से recommendation लेना है, and that और ये wide and deep model अभी live है हमारे Google Play Store पे। हम जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं या जो भी ऐप सर्च करते हैं उसके recommendations come from wide and deep models. So that is all I have to talk about recommendation systems today. So before I go to the next topic, any questions, any random discussions on any of these you guys want to discuss, we can have those 5 minutes, 10 minutes, and then I'll move on to the next topic. कुछ नहीं समझाओ तो बताओ, आई कैन सिंप्लीफाई इट डाउन ऑल्सो। कुछ बाउंसर गया हो, स्पेशली वाइड एंड डीप मॉडल्स, तो आई डेफिनेटली फील बाउंसर गया क्योंकि बिकॉज वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट व्हाट इज लीनियर मॉडल, व्हाट इज मेमोराइजिंग थिंग्स या व्हाट इज डीप न्यूरल नेटवर्क्स। बट देन ये सेकंड सेशन है, इट्स टू क्विक टू गो देयर, बट वी आर लुकिंग एट डिफरेंट केस स्टडीज, so I felt this is interesting and I should talk about it.
किसी को कुछ what do we need to take care about collecting data for this? इसके लिए डेटा हर कंपनी अलग खुद ही कलेक्ट करती है, तो वी यूजुअली टेक केयर नहीं, व्हाट वी शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर कलेक्टिंग, लाइक हम यूजर का क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाइल रजिस्टरिंग हम उनसे क्या क्या ले रहे हैं, या फिर उसके कुकीज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर उसका जैसे मैंने मैट्रिक्स बताया हर रेटिंग का, वो तो ओपन डेटा है, वो तो मतलब we need to take care from a data science या machine, this is more of data engineering question कि हमें डेटा क्या कलेक्ट करना है। हमारे मशीन लर्निंग तो अब अवेलेबल डेटा से हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली वी हैव रिकमेंडेशंस कि हाँ ये डेटा कलेक्ट हो सकता है क्या, बट टू बी ऑनेस्ट नहीं, I don't know the correct answer what we need to take care of, but we need to actually be aware of what all data is being collected for us to build better models. Guys, आप unmute करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, even chat box is also okay, but yeah. जो लोग एकदम शुरुआत में नहीं थे, वी ऑल रिक्वेस्टेड कि कैमरास ऑन रख सकते हो तो ऑन रखना, and I'm seeing a lot of people are preferring not to. It's fine, but it feels more interactive talking like that. Recommendation system में manipulation possible है क्या, like forcefully manipulate करना kind of things? Yes. तो अभी कैसा होता है ना कि as long as you are not Amazon or something, आप कोई छोटी कंपनी हो तो आपको कई बार स्टॉक क्लियरेंस करना होता है, या फिर कभी कुछ प्रोडक्ट्स को ओवर मतलब इसको जल्दी खत्म करो, या ये हमारे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है इसको पहले दे दो, तो उनको हमें डिस्पाइट ऑफ उसके यूजर के साथ मैच नहीं कर रहा, हमें मैनिपुलेटिवली फोर्सफुली उनको ऊपर भेजना पड़ता है, बिकॉज कंपनी का बिजनेस उस तरीके से डिफाइंड है, उस प्रोडक्ट पे डिफाइंड है। तो हाँ, मैनिपुलेशंस करते हैं और होते भी हैं। ये एक तरह का एथिकली रॉन्ग नहीं है। हाँ, अब I have two examples. Like in between there was a article published कि YouTube slowly बहुत left inclined videos को promote कर रहा है। उसमें लेकिन YouTube की कोई गलती नहीं थी। I have studied YouTube का recommendation engine का पेपर जो है publish हुआ था कि how do we recommend, मैंने depth में पढ़ा था। Things naturally happen like that. You know, these companies, some companies might want to do it, but कभी-कभी वो quite naturally हो जाता है। बीच में ऐसे भी हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट ने एक ट्विटर बॉट बनाया था which automatically chats with lot of people response, and slowly it become a Nazi favoring and anti homosexual and मतलब ऐसे काफी hatred filled बॉट बन गया था। उसके आगे आने वाले सारे ट्वीट्स उस तरीके से ऑटोमेटिकली बन गए थे। तो the more who he the bot interacted with, या the recommendation जो भी उसके बैकग्राउंड इंजन है उसका एक्सपोजर कैसे होता है, उसके हिसाब से भी वो बायस्ड या मैनिपुलेट होता है। और वो तो मतलब इसमें आई एम नॉट सेइंग अनएथिकल चीजें कंपनीज, ऐसे जो जनरल मॉडल्स हैं वहाँ पे यूजुअली ऑटोमेटिकली भी काफी चीजें हो जाती हैं। Was that your question, like, or? हाँ, वही क्वेश्चन था। लाइक रिसेंटली देयर हैज बीन ना कि गूगल न्यूज़ पे मोस्टली सेंट्रल फंडेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके न्यूज़ आते हैं। तो काफी बार मैं वही बोल रहा हूँ कि काफी बार मॉडल का एक्सपोजर उस टाइप के इसको ज्यादा हो जाता है और वो वही ऑटोमेटिकली रेकमेंड कर देते हैं। और काफी बार कंपनीज भी ये चीजें करती हैं टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स। सो द बोथ वेज इट इज दैट कि वो नेचुरली भी हो जाता है कभी कभी inclined towards one thing, and sometimes they are being manipulated, but truth is never